first we have to learn the meiosis 2. That is very simple also. So just have a recap, all of you. एक बार just go through whatever we have learned in this particular topic. This lesson is a very important topic both for 11th as well as for 12th. You should be aware of all the basic things about mitosis and meiosis. Okay? At the end of the topic, I will be asking you questions also today, because we will be ending with this topic. आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस. तो मैं जिसका नाम लूंगी वो अनम्यूट होके मुझे आंसर देगा. Till other children are joining, so just let us have a recap whatever we have seen. So in any of the cell cycles, there are two basic phases as the interphase and the M phase. M phase, M का मतलब है माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस कहाँ पर होता है? सिर्फ सोमैटिक सेल्स में. और मियोसिस कहाँ पर होता है? इन दी रिप्रोडक्टिव सेल. Yes. Interphase में we have already learned there are three different phases as G1 phase, S phase and G2 phase. जहाँ जब भी सेल ग्रोथ का जरूरत नहीं है, हाँ, जो पार्ट में सेल ग्रोथ का जरूरत नहीं है, तो वहां पे टेम्पररली जो सेल साइकिल है वो G1 से G0 फेज में चला जाता है. तो ये ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म है विच इज टेकिंग प्लेस. So interphase is a resting phase again which has G1, S and G2. It is also called as a preparatory phase. जहाँ सारा preparation होता है for what? For this M phase. So DNA का replication बोलो, हाँ, everything is taking place over here. So G1 phase में क्या होता है? DNA replication, cell grow होता है, continuous growth cell. Cell becomes very active and replication के लिए preparation. S phase now, it is the longest phase. Again DNA replication is taking place over here. इसलिए इसको synthetic phase बोलते हैं क्योंकि यहीं पे actually synthesis होता है DNA का. Okay. And last one is the G2 phase जहाँ पे already सब कुछ तैयार है, बस M phase होने की के लिए रुके हैं. तो M phase में हमने ये सब phases पढ़ा था. M phase में हाँ, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, पहले दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, फिर बाद में दो डॉटर सेल बनते हैं. यस. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. सो दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन. देखो आप देख सकते हो कि एक सेल से दो न्यूक्लियाई बने. सेल एक ही है पर सिर्फ दो न्यूक्लियस है. और फिर साइटोकाइनेसिस से दो सेल बनते हैं. तो कैरियोकाइनेसिस में दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और साइटोकाइनेसिस से दो प्रॉपर सेल डॉटर सेल्स बनते हैं. So karyo is a nuclear division and cyto is a cytoplasmic division. So as I've explained you about the quiescent stage also, let us have a recap for mitosis once again. So mitosis is taking place in the somatic cell. And it is also called as the equational division because the number of chromosome in the parent and the daughter cell is always the same. Progeny cell को हम daughter cell भी बोलते हैं. Is the same. No doubt mitosis is always seen in the diploid cells, but yes, we can also see in some of the haploid cells of lower plants and some insects also. Here what happens, there is a reorganization of all the cell components. Again ये आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना है. कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन में चार फेजेस हैं. प्रोफेज, प्रो मीन्स जो सबसे पहले आएगा. मेटा का मतलब जो बीच में होता है. एना का मतलब है दोनों पोल्स पे. और टीलो का मतलब है लास्ट. टीलो का मतलब होता है एंड. ठीक है. बायो में टीलो मीन्स एंड. तो
Telophase is the end phase. But you have to use this terminologies only: prophase, metaphase, anaphase, and the telophase. Okay, in general what happened? प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा, जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो कंडेंस होगा, वो लॉन्गेस्ट फेज होता है ना। एक बार एक कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा तो लेट प्रोफेज में क्या होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, या फिर आप इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, वो आप देख सकते हो धीरे धीरे टूट रहा है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है या फिर डिसअपियर हो रहा है। हाँ, whatever word you feel appropriate you can write down. ठीक है, you can write down that in a late prophase the cell and the nuclear membrane starts disappearing, the nucleolus also starts disappearing. ठीक है, and similarly the organelles also, like the Golgi bodies, endoplasmic reticulum, all these are disappearing. ठीक है, and what is appearing? Spindle fiber start appearing. मेटा का मतलब है बीच में, सो मेटा फेज में क्या होता है? ऑल आर कमिंग एट द इक्वेटोरियल प्लेन, एंड दिस वेयर द ऑल द क्रोमोसोम्स आर, जहां पे सब लटके हुए हैं बीच में, इस प्लेट को, ये रीजन को हम क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। एनाफेज में क्या होता है? द सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, देखो हमने पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, तो देख सकते हो आप यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से, तो जो 2 क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स से वो ऊपर चले जाएंगे और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स नीचे आ जाएंगे। तो दिस इज एनाफेज बिकॉज ऑफ स्पिंडल कॉन्ट्रैक्शन। टीलोफेज में वी कैन सी द 2 प्रॉपर न्यूक्लियाई, सेल एक ही है पर 2 न्यूक्लिया है उसके अंदर। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तब 2 सेल बनेंगे। ठीक है, सो यू कैन सी दैट अभी वो वापस से क्या हो रहा है? अनकॉइल हो रहा है, मतलब उसका कंडेंसेशन जा रहा है अभी और वो अनकॉइल होते जा रहा है। न्यूक्लियर एनवलप भी आने लगा, न्यूक्लियोलस भी आने लगा, और अब क्या गायब होगा? स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे गायब होने लगेगा। Got it? नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में प्लांट में अलग तरीके से होता है, एनिमल में अलग तरीके से होता है। प्लांट के अंदर प्लेट बन के होता है और एनिमल में फरो से होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ फरो। ये फरो से ये 2 सेल बनते हैं, जबकि प्लांट में सेल प्लेट से बनता है। सेल प्लेट आता कहाँ से? फ्रॉम दी गोल्गी बॉडीज। ये आप क्या बता सकते हैं? दिस इज एन एनिमल सेल का क्लीवेज फरो से बनता है, 2 सेल बनते हैं इन एनिमल। बट इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेल प्लेट। ये सेल प्लेट आता कहाँ से? बाय द वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडीज। सो फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज वेसिकल से ये सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं बीच में, और जिसके कारण एक पूरा ब्रिज बन जाता है या फिर एक वॉल या फिर पार्टीशन बन जाता है, जिसके कारण 2 अलग अलग सेल हो जाते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। So this is the overall step. Significance also we have seen. Identical genome. We can see the identical genome. We can see the identical genome over here. It is seen only in the somatic cells. Yes, it helps in growth. Asexual reproduction में सिर्फ mitosis ही होता है. That also we have seen. Then we have seen yesterday. We have seen about the meiosis. Yes, meiosis में हमने क्या पढ़ा बेटा? meiosis सिर्फ और सिर्फ gametes में होता है, gamete formation में. So it is helping in gametogenesis. इसके कारण क्या बनता है? haploid phase. हाँ बोलो बेटा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में फर्क बताओ ना। डिप्लॉइड मतलब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट,
डिप्लॉइड मीन्स 2 सेट, हैप्लॉइड मीन्स हाफ सेट। जैसे अपने पास 46 क्रोमोसोम है तो ये क्या हो गया, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब set हम of 46 को डिप्लॉइड बोलेंगे। इतना क्लियर है? yes मैम 46 को डिप्लॉइड बोलेंगे और 46 का आधा क्या होता है 23, तो 23 को क्या बोलेंगे हम, हैप्लॉइड बोलेंगे। haploid ठीक है, तो जो स्पर्म बनता है और जो एग बनता है ना वो हैप्लॉइड बनता है, वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम वाले बनते हैं। अब समझ में आया? yes मैम हाँ, तो इसके लिए वहां पे yes मियोसिस होता है। ठीक है, सो मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ओके, और भी किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मियोसिस? मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 से हमें क्या मिलता है, 2 सेल मिलते हैं, और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होता है तो यही 2 सेल से हमें 4 सेल मिलते हैं। क्लियर है? मियोसिस 1 का क्या एडवांटेजेस है कि मियोसिस 1 में ही क्रॉसिंग ओवर होता है या चायज़माटा बनता है। ठीक है, मियोसिस 1 के अंदर ही चायज़माटा फॉर्मेशन होता है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। जबकि मियोसिस 2 इज सेम लाइक माइटोसिस, मियोसिस 2 इज सेम लाइक माइटोसिस। ठीक है, तो अभी अगेन जस्ट हैव अ रिकैप व्हाटएवर वी हैव लर्न। सो मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में अगेन देयर आर 5 phases as leptotene, zygote, diplotin and dikinesis. Very good, ठीक है। So it is the longest phase। ठीक है, अच्छा लिप्टोटिन में क्या होता है, सिर्फ तैयारी होती है कि चलो अभी प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो क्रोमैटिन फाइबर जो है वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगेगा और न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा। ओके, जाइगोटिन में क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक साथ आ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सब साथ में आ गए हैं। हाँ, और साथ में आने के बाद वो लोग क्या बन गए, पैर कर लिए, और पैरिंग को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। और ये जो फॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि each pair of homologous chromosome is called as the bivalent। एक को हम क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी है बाईवैलेंट फॉर्मेशन, फॉर्मिंग। फिर हमने क्या पढ़ा, पेकाइटिन। पेकाइटिन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे ये जो बाईवैलेंट है वो टेट्राड बन जा रहे हैं। देखो यहाँ पे टेट्राड बन जा रहे हैं और यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होता है। पेकाइटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज एंड इट इज अ लॉन्गर फेज। क्यों लॉन्गर है? बिकॉज यहीं पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये रिकॉम्बिनेशन? बाय क्रॉसिंग ओवर और द चायज़माटा फॉर्मेशन। So the chiasmata can be easily seen in the diplotin condition, but pectine में ही ये क्रॉसिंग ओवर हो जाता है एक एंजाइम के मदद से जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिप्लोटीन कंडीशन में हम क्लियरली ये एक्स शेप स्ट्रक्चर आसानी से देख पा रहे हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि ब्लू में रेड आ गया और रेड में ब्लू आ गया, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। तो इसी में हम डिप्लोटीन में हमें एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम चायज़माटा भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये क्रोमोसोम वापस से और फुल्ली कंडेंस्ड, क्योंकि अभी इसको क्या करना है, मेटाफेज में जाना है ना, ये तो अभी प्रोफेज ही चल रहा था। स्पिंडल फाइबर दिखने लगेगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर आएगा तभी तो वो लटकेगा ना इक्वेटर पे। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपियर होने लगते हैं। सो लेट अस सी मियोसिस 1 में क्या होता है। मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में सारे लोग इक्वेटर पे आ गए। यू कैन सी ओवर हियर, प्रोफेज के बाद ये मेटाफेज में जब जा रहा है, प्रोफेज से मेटाफेज में जा रहा है, तो सारे लोग इक्वेटर पे आ गए। किससे जुड़े हैं? स्पिंडल फाइबर से जुड़े हैं। और ये क्या है? सेंट्रियोल है।
सेंट्रियोल में से ही निकलता है, फ्रॉम सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स में से निकलता है। एनाफेज में क्या हो रहा है, दोनों दोनों पोल्स पे चले जा रहे हैं। यस, एंड लास्ट इज टीलोफेज में क्या हो रहा है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, और दो डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई को मैं एम्फसाइज कर रही हूँ बेटा, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने, अभी तक सेल नहीं बने, सिर्फ न्यूक्लियस दो बना है, इसलिए हम इसको डायड बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज इंटरकाइनेसिस, ये मैंने आप लिखने के लिए भी दिया था। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का जो ब्रेक है, जो शॉर्ट स्टेज है बिटवीन देम, इज कॉल्ड एज अ इंटरकाइनेसिस। चलो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मियोसिस 2। तो देखो अभी हमारे पास ये रेडी है, हाँ, अब हम इससे क्या होगा, इसके अंदर सेम ये दो सेल्स बने हैं ना हमारे पास, अब इसमें वापस प्रोफेज 2 होगा, फिर मेटाफेज 2 होगा, फिर एनाफेज 2 होगा, और फिर जाकर 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन है बेटा, इट इज वेरी सिंपल लाइक माइटोसिस, सेम इट रिजेंबल्स द माइटोसिस, है ना, माइटोसिस जैसा दिख रहा है कि नहीं आपको सबको, यस। पर फर्क क्या है, फर्क ये रिकॉम्बिनेशन का है। ये देखो, आप देख सकते हो कि ये रेड वाले में थोड़ा सा अलग ये नीचे है, ब्लू वाले में भी नीचे थोड़ा अलग है, यहाँ पे भी देख सकते हो रेड में ब्लू, ब्लू सॉरी ये पिंक जो है, पिंक में रेड, हाँ, ब्लू में कुछ अलग कलर। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन द क्रोमोसोम। तो आप जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो दैट टाइम यू हैव टू शो दैट डिफरेंस आल्सो। तो लास्ट में आपको जो मिल रहा है वो 4 अलग अलग टाइप का मिल रहा है, एक पूरा रेड, पूरा ब्लू, रेड थोड़ा पिंक, फिर ब्लू, पूरा पिंक, ब्लू, पिंक थोड़ा रेड एंड ब्लू। तो दिस इज व्हाट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर। ये क्यों हुआ है, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण हुआ है, जो वहां पे हुआ था ना पेकाइटिन कंडीशन में, प्रोफेज में, इसके कारण ही ये सब हमें अलग अलग टाइप के गैमेट्स मिले हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ना बेटा कि स्पर्म, कौन से टाइप का स्पर्म कौन से एग को फ्यूज करता है, वैसा जो भी आज आप दिख रहे हो, तो आइदर यू मे बी हैविंग सम कैरेक्टर्स ऑफ योर मदर साइड और यू मे बी हैविंग सम कैरेक्टर्स ऑफ योर फादर साइड, बट यू विल बी हैविंग मिक्स्ड कैरेक्टर्स। मतलब आपका आईज मम्मी जैसा होगा, तो नोज और व्हाटएवर, मतलब कुछ ना कुछ मम्मी का होगा, कुछ ना कुछ पापा का होगा। तो ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। अभी ये देखो, लेट अस टॉक अबाउट अ स्पर्म ओनली, कि अगर समझो ये 4 अलग अलग टाइप के स्पर्म बने हैं, एक फुल रेड ब्लू, हाँ फुल रेड, स्मॉल पिंक एंड दिस थिंग, तो इन चारों में से ऐसे तो मिलियंस ऑफ बनेंगे अलग अलग टाइप के। तो इसमें से जो स्पर्म फ्यूज करेगा, वैसा फादर वाले साइड का बॉडी कैरेक्टर्स बच्चे में नजर आएगा। वेरी क्लियर? So, and therefore it resembles, you can say, like the mitosis. It has 4 phases again: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and the telophase 2. Prophase 2 में क्या होगा, as usual बेटा, so it is initiated immediately after cytokinesis. meiosis 1 का जो cytokinesis हुआ उसके बाद ये शुरू हो जाता है, इंटरकाइनेसिस के बाद। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, हाँ, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस डिसअपियर होने लगेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में क्या होगा, सारे लोग इक्वेटर पे आ गए। देखो प्रोफेज में यहाँ पे थे, अब ये सारे इक्वेटर पे आ गए हैं। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटोड्स। काइनेटोकोर्स मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन किया था। एनाफेज में दोनों पोल्स में चले जा रहे हैं, देखो आप, splitting of centromere of each chromosome and thus they move towards the poles, दोनों पोल्स पे चले गए। तो देखो जब ये अलग हो रहे हैं तो ये पिंक एंड रेड ये नीचे रह गया और पूरा पिंक ऊपर चला गया, अगेन ब्लू एंड लाइट ब्लू नीचे रह गया एंड पूरा ब्लू ऊपर चला गया।
आर यू गेटिंग? सो इससे अब ना एक सेल बन जाएगा, इससे एक अलग सेल बन जाएगा. So in telophase, what is happening? Two daughter nuclei is again from each cell. एक सेल से हमें दो डॉटर न्यूक्लिया मिल गए. तो हमने दो लिए थे तो हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल गए. ठीक है. So two group of chromosomes once again get enclosed by the nuclear membrane आ गया. आप देख सकते हो न्यूक्लियोलर आ गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, जिसके कारण 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए. इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सिर्फ आप देख सकते हो दो दो ही है. नहीं तो स्टार्टिंग में कितने थे? 4. अगर ये माइटोसिस रहता तो लास्ट में भी 4 क्रोमोसोम्स दिखने चाहिए थे यहाँ पे, पर क्योंकि ये मियोसिस है इसलिए हाफ दिख रहे, इसलिए देखो दो दो दिख रहे. स्टार्टिंग में देखो कितने थे? 4. 4 से कितने पे आ गए? 2 2 2 एंड 2. तो इसको क्या बोलेंगे हम? हैप्लॉइड. डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया. Just have a look for overall step. So ये पूरा मियोसिस है, ये पूरा मियोसिस 1. एक सेल से क्या मिला हमें? 2 डॉटर न्यूक्लियाई और 2 से हमें मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद 4 डॉटर न्यूक्लियाई. 4 डॉटर सेल मिला. ठीक है. कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? पर सिर्फ फर्क माइटोसिस और मियोसिस में ये है कि आप यहाँ पे आपको शेडिंग करके दिखाना है, एक डार्क और एक लाइट आपको रिकॉम्बिनेशन का बताना है. So again just have a overall step for, you can see over here meiosis 1 में parent cell था, इंटरफेज हुआ, प्रोफेज 1 हुआ, मेटाफेज 1 हुआ, एनाफेज 1 हुआ और टीलोफेज में हमें एक सेल से 2 डॉटर सेल मिले. अब यही एक डॉटर सेल से ये वाला एक और ये वाला एक, करेक्ट है ना? ये वाला ये यहाँ पे है और ये वाला ये यहाँ पे है. तो इसमें मियोसिस 2 में ये 1 से 2 मिला, वापस ये 1 से 2 मिला, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स. You can see over here they have shown with different colors as red and blue, so that there should not be any confusion. So एक सेल से शुरुआत हुई थी और 4 सेल मिल गया. So let us learn the significance of meiosis. Yes, meiosis होना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर meiosis नहीं होता, अगर हमारे गैमेट्स में भी माइटोसिस होता तो क्या लाइक बेगेट लाइक जो हम बोलते हैं ना, लाइक बेगेट्स लाइक. व्हाट डू यू मीन बाय लाइक बेगेट्स लाइक? मतलब कि जैसे कैट से कैट ही फॉर्म होगा, डॉग से डॉग ही फॉर्म होगा, ह्यूमन बीन से ह्यूमन बीन ही फॉर्म होगा. तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सी लेट मी टेल यू, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, जबकि चिंपैंजी जो होता है ना, चिंपैंजी, उसके पास 48 क्रोमोसोम है. तो जरा सोचो, हमारे पास 46 क्रोमोसोम और उसके पास 48 क्रोमोसोम. हमारे क्रोमोसोम में और चिंपैंजी के क्रोमोसोम में सिर्फ 2 क्रोमोसोम का फर्क है. मतलब उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, हमारे पास 2 कम है. पर सिर्फ 2 क्रोमोसोम से अगर वो चिंपैंजी दिख सकता है और हम ह्यूमन बीइंग दिख सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये क्रोमोसोम और ज्यादा हो जाता तो हम कुछ एलियंस ही दिखते. तो क्योंकि हमारे गैमेट्स में मियोसिस होता है, इसके लिए 23 + 23 इज ऑलवेज 46. अगर गैमेट्स भी 46 वाले बनते, मतलब स्पर्म भी 46 वाला बनता और एग्स भी 46 वाले बनते, तो 46 + 46 तो वो 90 अबव चला जाता. तो 90 अबव वाला क्रोमोसोम तो कुछ अलग ही, मतलब अलग ही कुछ दिखता. अगेन फिर ये 90 वाला वैसे ही गैमेट्स बनाना था, तो फिर और ये हंड्रेड्स में चला जाता, फिर थाउजेंड्स क्रोमोसोम में चले जाते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि हाउ द गॉड और द नेचर हैज मेड अवर बॉडी, कि हमारे बॉडी में हर जगह माइटोसिस होता है, सिर्फ एक गोनाड रीजन में छोड़ के बाकी सब जगह माइटोसिस होता है. तो दिस इज अ मिरेकल. ठीक है.
So it conserves the chromosome number of each species. हर स्पीशीज के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पर्टिकुलर रहता है. जैसे हमारे पास 46 है, डॉग का क्रोमोसोम नंबर अलग है, कैट का क्रोमोसोम नंबर अलग है, चिंपैंजी का अलग है, टाइगर का अलग है. तो हर एक स्पीशीज का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फिक्स्ड है. वो फिक्स्ड किसके कारण है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के कारण है. इसी के कारण जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलता है. यस, अगर ये नहीं होता तो सब एकदम जेरोक्स कॉपी दिखते. यस, भले अभी देखो, इफ अ पेरेंट हैज 4 चिल्ड्रन, तो वही पेरेंट है, पर वो जो 4 बच्चे हैं ना, वो चारों बच्चे अलग अलग दिखेंगे. हम ट्विन्स की बात छोड़ देंगे, आइडेंटिकल्स अगर ट्विन की बात अगर हम छोड़ देंगे, सी आइडेंटिकल ट्विन्स में अलग चीज है, दैट यू विल बी लर्निंग इन रिप्रोडक्शन. बट अगर ट्विन्स की अगर हम बात छोड़ेंगे तो एक ही पेरेंट के 4 बच्चे हैं या 2 ही बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे अलग अलग दिखते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर और द चायस्माटा फॉर्मेशन इन द मियोसिस. वेरी क्लियर. तो इसी के कारण जेनेटिक वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है. वेरिएशंस मींस डिफरेंसेस in the population of the organism, and it is very very important for evolution. Yes, अगर वेरिएशंस नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा. यस, अगर वेरिएशंस नहीं है तो इवोल्यूशंस नहीं होगा. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. Yes, Girish. हाँ, yes, you can unmute beta. But some voice is cracking. I am not able to hear you. No, ma'am, it's Sahil Awad. I am not. Sahil Awad mic is on. अच्छा अच्छा अच्छा. बेटा साहिल, आप प्लीज अपना माइक ऑफ करो तो. गिरीश, व्हाट इज योर डाउट बेटा? आस्क मी. Ma'am, आपने बोला था interkinesis is a period of rest of that cell of some species enter during meiosis between meiosis 1 and meiosis 2. तो वो जब रेस्ट होता है तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म नहीं होता? नहीं. क्यों डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए हमें? हमारा डीएनए का तो ऑलरेडी रेप्लिकेट क्रोमोसोम्स तो बन चुके हैं ना बेटा. वो सेल साइकिल में हो चुका है ना? हाँ, जो G1 G2 और ये फेजेस है, ये M फेजेस में ये सब कुछ नहीं होता. हाँ मैम, आप समझे? मैम वो डीएनए रेप्लिकेशन का ही पूछना था इसलिए. हाँ, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन बेटा मियोसिस या माइटोसिस में नहीं होता है, सबसे पहला पॉइंट. और मियोसिस जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों पार्ट के बीच में एक छोटा सा गैप है, दैट इज इंटरकाइनेसिस. तो वहां पे भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का कुछ रोल नहीं है यहाँ पे. It is just a break for some time to complete meiosis 1 and meiosis 2. Good doubt, but it is DNA replication नहीं होता है. As I have mentioned over here in the slide also, beta, if you can see, I have mentioned over here. Just wait. Yes, you can see the division is called as a interkinesis. Okay, see here the last point. DNA replication does not occur in this phase. Which phase? Interkinesis में DNA replication नहीं होता है. ठीक है? डीएनए का रेप्लिकेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, आरएनए का रेप्लिकेशन, ये सबका सबके लिए इंटरफेज है, नॉट इंटरकाइनेसिस. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन इंटरकाइनेसिस एंड इंटरफेज. इंटरफेज में सब होगा, प्रोटीन बनेगा, हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होंगे, हाँ, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वो सब होगा उधर सिंथेटिक फेज में, G1 G2 फेज में. ओके, सो I was talking about the significance of meiosis. Yes, तो meiosis के बारे में क्या बता रही थी बेटा मैं, कि a single parent will have different all the children of a single parent will not look alike. भले हैं वो सेम पेरेंट के, बट फिर भी सब अलग अलग दिखते हैं. The reason is only because of this chiasmata crossing over which is taking place in the
Pectitin of meiosis 1. Very clear, all of you. Anybody is having any sort of doubt? किसी को कुछ doubt है क्या? Because we have finished with this topic. If you want, I can share the textbook with you all. किसी को कुछ भी डाउट है तो यू कैन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव ड्रॉन द सेल साइकिल सबने ड्रॉ किया है. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. So again, today's homework you all know very well. It will be obviously this meiosis 2, and meiosis 2 will be very easy for you all to draw, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने बार प्रैक्टिस किया है तो meiosis 2 आसान होगा ड्रॉ करने के लिए. ठीक है. And I hope you have used the internet, my friend. आपने ये use किया होगा, इंटरनेट का इस्तेमाल किया होगा for knowing all these questions. So today homework क्या है आपको? To write down the stages of meiosis 2 and you have to write down the significance of meiosis. Significance of meiosis. Yes. चलो, anybody is having any sort of doubt, you can clear it now. किसी को कुछ doubt है क्या? Do you want to see the PPT once again? Yes, miss. Okay. So I will show you the PPT once again right from starting. जो भी kinetochores वगैरह का भी जो भी points है, you can clear it out. जो जिसको doubt रहेगा, you just interrupt me. I will clear out that doubt. Those who late joined हुए, उनको मैं वापस दिखा दे रही हूँ स्टार्टिंग से पीपीटी. By the meanwhile you are seeing the slides, I will ask you questions. मैं जिसका नाम लूंगी वही लोग अनम्यूट करके मुझे बोलेंगे, ठीक है? ओके. Bhavini, unmute yourself and answer me. Okay, Bhavini, unmute yourself. Tell me, mitosis is dash division. Mitosis is dash division.
Yes, Bhavini, are you there? है या नहीं? Not there. Next, Girish. Yes, ma'am. Yes, tell me, mitosis is dash division. Division. It is also called as dash division. Mitosis is also called as dash division. मैम सेल डिवीजन नहीं होता है ना? अरे बच्चा, सेल डिविजन तो पूरा ही है ना, but it is also called as which division? Mitosis is also called as which division? चलो, who knows the answer? Equational division. Equational division, ma'am. Indirect division. Yes, equational division. Why Equational. equational? Yes, बस equational division क्यों? Because the number of chromosome is same. चलो next, सही, unmute yourself. Meiosis is also called as which division? Meiosis is also called as which division? Reductional division. Yes, it is called as a reductional division. Correct. Very good. Chalo, Jennifer. Next question to you. Which is the longest phase in meiosis 1? Which is the longest phase in meiosis 1? Jennifer. Longest phase of meiosis 1. Yes. Tell me first. Don't know. Yes and no to bolo. Chalo, Vedant, can you tell me? Vedant Rane, can you tell me? Teacher, prophase one. Yes. Very good. Prophase 1. Correct. Chalo, Vedant Rane, in prophase 1, which is the longest phase? In prophase 1, which is the longest phase? Vedant Rane, tell me the answer. Don't know. What about the next Vedant? Vedant क्या है? दूसरा भी एक Vedant है ना? Two Vedants are there ना? Second Vedant, can you tell me? Pkytin. Very good, Peckytin. Shabash. Chalo, Sanika. Sanika, tell me. In mitosis, Yes, ma'am. one cell से कितने सेल बनते हैं? Ma'am, repeat again. In mitosis, from one cell, how many cells are formed? 2. Very good. Next, Astha. Yes, In ma'am. meiosis, from one cell, how many cells are formed? 4. Okay, very good. Chalo. Next is, can you tell me, Pallavi? Pallavi, can you explain me what is synapses? Rest other can see the PPT. Pallavi, can you tell me what is synapses? Don't know. Nidhi, can you tell me? Nidhi Nayak. Sagar. Vishakha. Yash Barode. Yash Barode, can you answer what is synapses? किसी को भी नहीं आ रहा है जिसका मैं नाम कॉल आउट कर रही हूँ. चलो वेट. दर्शना, can you tell me? Ma'am, homologous chromosome. Pairing of homologous chromosome. Yes. Pairing word is very important. Pairing of homologous chromosome. Very good. Okay. Next question. Can anyone tell me the difference between the cytokinesis of plant cell and animal cell? Harsh, Nipane, can you tell me? Harsh.
Piyush Singh. Pranay Sawant. Prathamesh Kedar. Difference between cytokinesis of plant cell and the animal cell. Cleavage furrow appears in plasma membrane in animal cell. Cytokinesis in plant cell, cleavage furrow is not formed. In cytokinesis in animal cell, in this stage the notch is formed at the equatorial plane and gradually deepens, forming the two cells. Cytokinesis in plant cell, in this stage cell plate is formed exactly along the wind line for the two cells. अच्छा पढ़ के बता रहे हो बेटा? नहीं. अच्छा अपने मन से बोल रहे हो? ओके वेरी गुड गुड. ठीक है चलो that is done for today now. I will be leaving you थोड़ा सा early today because I have next lecture just now. I have to log in that also. Ma'am, ठीक है? what is maternal and paternal chromosome? मैटरनल का मतलब होता है मदर्स साइड क्रोमोसोम एंड पैटर्नल मतलब फादर्स साइड क्रोमोसोम. Okay, thank you, ma'am. मैटरनल मदर, पैटर्नल फादर. So you are having both the chromosomes with you, maternal side also and paternal side also. Yes, so I will stop now बेटा. ठीक है? प्रतिभा मैम आप हो क्या? हाँ मैम. मैम मुझे दूसरा लेक्चर है तो मैं स्टॉप